Hello student, today we are going to learn next problem number 4. Admission of partner, problem number 4. Uh, in this problem, we'll learn a concept related to revaluation of assets and liabilities and as well as calculation of goodwill. As well as we'll learn here calculation of goodwill using average profit method. Everybody know there are two valuation method of goodwill. First one is a super profit method and average profit method. In this chapter we learn how to calculate goodwill using average profit method. Okay, see this one a problem, problem number 6 from your textbook. First upon open your textbook and check in your textbook because whole answer in a textbook without full working note. Okay, whole answer in your textbook. I'll read here problem. Listen be carefully. Samir and Nisha were partners sharing profit or losses in the ratio 3/4 and 1/4. Shows following balance sheet as on 31st March 2018. See here, Samir and Nisha profit sharing ratio is a 3:1. 3/4 and 1/4 means what? Ratio is what? 3:1. Okay, 3 shares for Samir and 1 share for Nisha. They given old balance sheet here. Balance sheet liability side, see all liabilities balances and asset side all assets balances. Then posting for a balance sheet capital account, we recorded partners capital account credit side. Partners capital amount where we posted partners capital account credit side. Next one, general reserve 48,000. And the last problem already I'll explain. When general reserve or reserve fund given in an old balance sheet that can be distributed to old partners in their old ratio. So here we distributed that general reserve amount in old ratio. Okay, so 48,000 multiplied by 3/4, 48,000 multiplied by 1/4. For both one we distributed this one amount. Okay, see next one. General reserve we distributed partners capital account credit side where we recorded partners capital account credit side. Next one, creditor we posted to new balance sheet liability side. Creditors we posted to new balance sheet liability side. Stock 90,000 that can be posted to new balance sheet asset side. Fixture means what is a one type of furniture that can be fixed in a wall is known as a fixture. 60,000 that can be posted to new balance sheet asset side. Debtors new balance sheet asset side. Bills receivable new balance sheet asset side. Cash in hand new balance sheet asset side. Okay, but remember here we create one more account related to cash in hand. That's why that cash amount we recorded cash account debit side 75,000. Okay, that cash account we recorded 75,000 cash account debit side. Then they admit Poonam for 1/4 share on 1st April 2018 on following terms. Okay, they admitted Poonam for 1/4 share future profit on 1st April. Okay, see what is the terms and condition related when they admitted to Poonam. Poonam introduced rupees 1,20,000 as her capital. See here, she bring capital amount rupees 1,20,000. So what we do here, general entry for Poonam, when Poonam bring or new partner bring capital, then entry is cash account debit
to new partner's capital account. So your entry is cash account debit to Poonam capital account 1,20,000. When new partner bring goodwill, then we posted to partners capital account credit side. याद रखो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर आता है तो उसकी जर्नल एंट्री एंड एज वेल एज पोस्टिंग दोनों भी याद रखनी है. ओके. नेक्स्ट, पूनम would pay cash for goodwill which would be based on 4 years purchase of past profit of last 5 years. Okay, see here not given any goodwill amount. हमें कैलकुलेट करनी है on the basis of 4-year purchase of past profit of last 5 year. Okay, see here they given purchasing year 4 years and profit for last 5 years. So using that one we find out goodwill amount. We means first one find out total profit, then average profit, then goodwill, and then in share of Poonam. Then they given assets and assets were revalued as under furniture 45,000 C. Sorry, fixture 45,000. Fixture amount C is 60,000. Last value is what, 60,000, and right now is a 45,000. So that assets increases or decreases? Yes, decreases. That assets value decreases. When assets value decreases, then we debited to revaluation account. We debited to revaluation account to fixture. How many rupees? 15,000. Next, bills receivable. Last amount is what, 90,000, and right now bills receivable amount 1,20,000. Here bills receivable amount increases or decreases? 90,000, and here 1,20,000. So bills receivable amount increases or decreases? Yes, increases. So we recorded when assets value increases, then we recorded revaluation account credit side, and general entry is bills receivable account debit to revaluation account. Next, stock 60,000 we see here, 60,000 is amount, and here 90,000. How many? 90,000. So is increases or decreases? Old balance sheet we see stock amount is what, 90,000, and stock amount after admission of Poonam 60,000. Again here decreases of stock. When assets value decreases, then we recorded revaluation account debit side, and general entry is a revaluation account debit to assets account, मतलब stock account. Debtors at book value less a provision of 20%. How many provision? 20%. 20%. So 20% provision we calculated on 1,50,000. स्टूडेंट याद रखो यहाँ पे जो भी 20% कैलकुलेट करना है वो किस अमाउंट पे ऊपर होगा, आउटर वाले डेटर्स के, अब नहीं तो इनर कॉलम में डेटर्स की अमाउंट लिखिए उसके ऊपर. तो 1,50,000 के ऊपर 20% कितने होते हैं? 30,000 होते हैं. देखो एक बार करके. तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू क्या, पहले जो भी आरडीडी था 15,000 पहले से प्रोविजन करके रखिए, बट अभी कितनी होगी? 20% लेस होगी. सो पहले से 15, तो 15,000 की रिकॉर्ड होगी. ओके, बट लिखते समय हम क्या लिखेंगे? 30,000. एंड आरडीडी मीन्स डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई दैट कैन बी रिकॉर्डेड. कहाँ पे लिखेंगे ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. ओके, bills payable of rupees 15,000 have been omitted from books. Omitted means what? कैंसिल करना. निकल दिया है. कैंसिल. बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, मतलब पे कर दिया, या ओमिटेड कर दिया मतलब सिर्फ कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते. तो जो भी बिल्स पेबल की अमाउंट थी दैट कैन बी पेड. तो पेड करने के बाद क्या होगा? बिल्स पेबल तो नहीं दिख रहा है, वहाँ पे लिखा है क्या? अनरिकॉर्डेड है. क्या है? अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल है ना.
ओमिट ही नहीं किया, ओमिट किया मतलब ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ओमिट किया, लिखा नहीं, गलती से हो गया था, या ऐसे कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो, उन्होंने यहाँ पे बिल्स पेबल नहीं लिखा है, बिल्स पेबल की अमाउंट नहीं लिखे, तो करना होगा रिकॉर्ड, अनरिकॉर्डेड, ये क्या है, अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल है, तो उन्हें रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड। और दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहाँ पे जाएगा भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, या लायबिलिटीज पहले नहीं थी ना, अभी हो गई, तो कहाँ पे जाएगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। ओके ठीक है, देखते हैं। देन नेक्स्ट वन दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिए 5 ईयर के, यूजिंग दैट वन हमें फाइंड आउट करना है। ओके सी, देखो फर्स्ट वन एडजस्टमेंट क्या थी, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, पहले 60,000 बाद में 45,000, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दिखेगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट एक बार फिर से देखते, एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीज हो गए थे, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस हो गए थे, तो उसमें दिया था फर्स्ट फिक्चर, पहले 60,000 था, बाद में 45,000 हो गया, तो यहाँ पे आ गया। बिल्स रिसीवेबल के बारे में भी वैसे वहाँ पे वो इंक्रीज हो गया, दैट्स वाई बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे आ गया। देन स्टॉक डिक्रीज हो गया, तो डैक्स स्टॉक यहाँ पे। देन डेटर्स आरडीडी यहाँ पे लिखा, डेटर्स लिखो, अब प्रोविजन ऑन डेटर्स लिखो या आरडीडी लिखो तो भी चलेगा। एंड पहले अनरिकॉर्डेड यहाँ पे एसेट थी, सॉरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज थी, तो रिकॉर्ड की, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखेगा, लॉस आ रहा है, दैट लॉस कैन बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कहाँ पे जाएगा वो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सी, याद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो दैट कैन बी रिकॉर्डेड और पोस्टेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये तो आपको पता ही है पहले से। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हियर दे गिवन न्यू पार्टनर इज अ पूनम, न्यू पार्टनर पूनम, and she bring rupees 1,20,000 as कैपिटल, तो उसकी एंट्री होगी यहाँ पे, उसने क्या लाया था, कैपिटल लाया था, तो बाय कैश रुपीज़ 1,20,000, ये बाद में देखते हैं। ओके, बट उसने क्या लाया था, कैपिटल लाया था, तो उसकी एंट्री यहाँ पे 1,20,000। एंड एज वेल एज अभी हम क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेशन करते, तो उसकी वर्किंग नोट देखते, गुडविल कैलकुलेशन की वर्किंग नोट देखते कैसे गुडविल कैलकुलेट करना है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, गुडविल कैलकुलेशन के लिए मैंने वर्किंग नोट लिखी है, पहले टोटल प्रॉफिट निकालना है, 5 ईयर के जो भी प्रॉफिट अमाउंट दिए थे, तो प्रॉफिट अगर यहाँ पे लॉस दिया होता तो लेस किया जाता था, 60,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 30,000 प्लस 45,000, टोटल इज 2,55,000। बाद में निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5, so we got average profit 51,000, what is average profit 51,000। then निकालेंगे गुडविल, यूजिंग दैट वन निकालेंगे अभी गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर्स, तो यहाँ पे दिए थे परचेसिंग ईयर कितने दिए थे, शुरुआत में ही दिए थे परचेसिंग ईयर क्या दिए थे, 4 ईयर्स दिए थे। ओके, तो 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आ रहा है टोटल गुडविल अमाउंट इज व्हाट 2,04,000, टोटल गुडविल अमाउंट इज व्हाट 2,40,000। ओके, एंड देन फाइंड आउट करो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब पूनम, पूनम का शेयर क्या था 1/5 था, तो 2,04,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, so we got पूनम शेयर ऑफ गुडविल 40,800।
पूनम शेयर ऑफ गुडविल 40,800। स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, तो बाकी देखते हैं। When partner bring goodwill, then we recorded cash account debit side and goodwill account credit side. When that goodwill amount is distributed, then we recorded distribution की एंट्री सिर्फ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ पे, ये देखो, जो आए थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनके सैक्रिफाई रेशियो में। क्या होगा सैक्रिफाई रेशियो? सैक्रिफाई रेशियो क्या होगा? 3:1 ही है। क्या है सैक्रिफाई रेशियो? 3:1 ही है। ओके, कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है सैक्रिफाई रेशियो, वही आएगा 3:1। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड टू समीर कैपिटल, टू निशा कैपिटल। ये जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल है। गुडविल आया था, हमने वहाँ पे देखा अभी 40,800। कितना था? 40,800। तो उसकी पोस्टिंग हो गई है। फिर देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, वो देखते हैं। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है आपको, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है। वो क्या है? जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में बैलेंस दिया था वो है। यहाँ पे देखो आपको जनरल रिजर्व दिखेगा। जनरल रिजर्व की अमाउंट 36,000 एंड 12,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देन पार्टनर्स ने गुडविल लाया था, उसकी एंट्री है। देन रिवैल्यूएशन से लॉस हो गया था, वो लॉस की एंट्री देखो यहाँ पे लिखा है। लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस था, लॉस हुआ था, तो वहाँ पे क्रेडिट साइड था, तो यहाँ पे आने के बाद डेबिट साइड आएगा। ओके, बैलेंस शीट देखते हैं। देन बैलेंस शीट कैश की वर्किंग नोट करके देखना है आपको। मैंने नहीं की है, तो आज के लिए आपको होमवर्क क्या है? कैश की वर्किंग नोट एंड एज वेल एज जर्नल एंट्रीज। देन डेटर्स 30,000 ही लेस किए। देखो यहाँ पे डेटर्स की अमाउंट 30,000 ही लेस किए। 15,000 तो पहले से हमारे, तो लेकिन वहाँ पे पोस्टिंग करते समय हमने 15,000 की, क्योंकि पहले से 15,000 की प्रोविजन थी। बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, तो उसकी एंट्री की है इंक्रीजेस की। स्टॉक की है एंड फिक्चर ऑल्सो। यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स दिखेगा। बिल्स पेबल की सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। क्रेडिटर्स तो पहले से थे। कैपिटल बैलेंस मतलब वो टैली करने के बाद यहाँ पे आपको कैपिटल बैलेंस दिखेगा। यहाँ पे टैली करने के बाद आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे कैपिटल बैलेंस दिखेगा। आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी वैसे ही प्रॉब्लम है, आप देख के वहाँ से कर सकते हो। जो भी एंट्री है यहाँ से देख के आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार फिर से बताती हूँ, इस प्रॉब्लम में हमने एग्जैक्टली क्या क्या किया था। इस प्रॉब्लम में हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये दोनों इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हमने इसमें देखे थे। तो गुडविल के बारे में याद रखो, गुडविल वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं, लेकिन सेम एज इट यही फॉलो करेंगे। गुडविल ब्रिंग एंड रिटेन, मतलब ब्रिंग की एंट्री होगी एंड एज वेल एज रिटर्न की एंट्री होगी। यहाँ पे अभी गुडविल अकाउंट और कैश अकाउंट मैंने नहीं बनाया, सिर्फ आपको वर्किंग नोट करनी है कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट का बैलेंस उतना कैसे आ रहा है। ओके, ठीक है। और कुछ है इसमें? ओके, ठीक है।
चलो एक बार फिर से जर्नल एंट्री बताती हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नेक्स्ट गुडविल के लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,800। रिटर्न की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट टू निशा कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर सैक्रिफाई रेशियो। नेक्स्ट फिक्सचर की एंट्री होगी एसेट्स डिक्रीजेस, दैट्स वाई एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर अकाउंट 15,000। देन बिल्स रिसीवेबल की 30,000 हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। स्टॉक की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने स्टॉक 30,000। डेटर्स की वैल्यू होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी या डेटर्स लिखो, प्रोविजन ऑन डेटर्स लिखो, अमाउंट होगी 15,000 नॉट ए 30,000। ओके 20% क्या बिकॉज ऑलरेडी में मेक प्रोविजन। नेक्स्ट वन बिल्स पेबल की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। हमेशा याद रखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो दैट कैन बी पोस्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी क्यों आपको वो रीज़न बताना है मुझे, क्योंकि पहले कुछ भी एसेट नहीं तो कुछ पहले से कुछ भी लायबिलिटी नहीं थी, अभी लायबिलिटी दिख रही है, मतलब इन शॉर्ट आपका लायबिलिटी का बैलेंस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई इंक्रीज होने के बाद कहाँ पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। ये थे आज का प्रॉब्लम, देखो एक बार यहाँ पे। ओके इसमें कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो। आपके टेक्स्ट बुक में पहले से ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके तो आज के लिए आपको होमवर्क है पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। इस प्रॉब्लम की आपको जर्नल एंट्री कंपलसरी आपके नोटबुक में लिखनी है और वो मुझे सेंड करनी है। ओके एवरीबडी अंडरस्टूड। क्लास वर्क में मुझे वो सारे स्टूडेंट के नोटबुक में सारे स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट या फ़ोटो दिखने चाहिए, सारे स्टूडेंट के मुझे फ़ोटो दिखने चाहिए जर्नल एंट्री के। तो आपको आज के लिए आपका होमवर्क है, मैं वहाँ पे असाइनमेंट दूंगी, आपको असाइनमेंट आएगा वहाँ पे आंसर लिखना ही है। आंसर क्या है तो जो भी हमने जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग की है उसमें से हमें अभी जर्नल एंट्री करनी है सारे। ओके